السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، علمی ادبی معلومات خان شاہدہ کے ساتھ پڑھو اور آگے بڑھو۔ ویلکم ٹو آل مائی لولی اسٹوڈنٹس۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ چلیے بچوں، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک پر۔ زمین۔ آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ مس یہ زمین کیوں بتا رہی ہے، تو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ ہے ہماری زمین، کتنی خوبصورت ہے نا۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے نعمت ہی نعمت یہاں پہ حاصل ہے، تو ہم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ بے شک۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری زمین سے تھوڑا سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آئیے، اب دیکھیے یہاں پہ زمین کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ کون کون سے حصے ہیں دو؟ وہ پانی اور زمین۔ زمین کا پورا حصہ دنیا میں کتنا ہے؟ 29%، اور 71% پانی ہے۔ 71% پانی ہے اور زمین 29% ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہم اسی کے ساتھ میں آگے چلتے ہیں اور بھی جاننے کے لیے۔ ارے یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ سارے جاندار ایک ساتھ میں۔ ارے کہیں آپ کو وہ ہم بچپن میں ایک سیریل دیکھتے تھے، جنگل جنگل بات چلی ہے چڈی پہن کے پھول کھلا ہے موگلی، وہ تو نہیں یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے، ذرا سوچیں میں یہ کیوں بتانا چاہ رہی ہوں۔ چلیے اب ہم اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ غور فرمائیں، اب ہم آگے چلتے ہیں اسی کے ساتھ میں۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ دماغ پر زور دیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہماری دنیا ہے اور جاندار ہیں، اور اسی کے ساتھ میں جنگلات ہیں۔ ہماری زمین ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے؟ اس کو بہت غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو سوچئے اور ضرور بتائیے گا۔ میرے اسکول کے بچے مجھے جواب دے سکتے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل کے بچے مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہم کیا کہیں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، ہمارا ارتقا ماحول کا مطالعہ حصے دوم 5ویں جماعت زمین پر کے جاندار، سبق نمبر 3 آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہم سبق نمبر 3 پڑھنے والے ہیں۔ اب اس میں 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلے کے زمین کی پیدائش 3.1، 3.2 زمین پر جاندار کی پیدائش، جانداروں کی پیدائش، 3.3 زمین پر جانوروں کی دنیا۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے جس میں کہا تھا جنگل جنگل پھول کھلا ہے، دیکھیے یہ ہو گئی زمین پر کی جانوروں کی دنیا، ہے نا، اور زمین پر جاندار، تو ہم ان سب کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلیے ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 3 زمین پر کے جاندار۔ اب دیکھیے زمین کی پیدائش 3.1۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ زمین کی پیدائش کیسے ہوئی۔ ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، مثلا ہم سب جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی، آج وہ جیسی ہے کیا ابتدا سے ویسی ہی تھی ہے یا بدل گئی ہے؟ اگر یہ تبدیل ہو گئی ہے تو وہ خاص تبدیلیاں کون سی ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور کس طریقے سے وجود میں۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہماری زمین ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت تیز رفتار بادل خلا میں پیدا ہوا۔ یہ بادل انتہائی گرم ہوا اور گرد و غبار سے مل کر بنا تھا۔ اپنی انتہائی تیز رفتار دائرہوی گردش کی وجہ سے، دائرہوی گردش مطلب گول 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 گھومنا، اس کو کہتے ہیں ہم دائرہوی گردش کی وجہ سے۔ جیسے آپ کبھی گول 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 گھومو تو آپ کو کتنی تیزی سے چکر آتا ہے، تو ایسے ہی دائرہوی گردش کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ہوئے، اور اس طرح سورج اور سورج کے گرد گھومنے والے سیارے پیدا ہوئے، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ عطارد نمبر 1، نمبر 2 زہرہ، نمبر 3 زمین، نمبر 4 مریخ،
नंबर 5 मुश्तरी, नंबर 6 ज़हल, नंबर 7 यूरेनस, नंबर 8 नेपच्यून। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे दिखते हैं और कैसा ये मंज़र है। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा सूरज है। अब देखिए ज़ोहरा जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं, मरीख मार्स, मुश्तरी जुपिटर, अर्थ मतलब ज़मीन, मरक्यूरी मुश्तरी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई। नेपच्यून को नेपच्यून ही बोला जाता है, यूरेनस को भी यूरेनस बोला जाता है, प्लाटो है एंड देन स्टेन है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ें, थोड़ा सा तस्वीर में बदलाव दिख रहा है आपको। बीच में आपको सूरज दिख रहा है, ज़मीन है, अर्थ है ना। तो यहाँ पे सेम गर्दिश चालू है। किसके अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं? सारे के सारे सूरज के अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं। तो आपको इसको याद रखिए, आपको इसको अपनी कॉपी में बनाना है। इसको कॉपी में ड्राइंग के ज़रिए आप बना सकते हैं या आप किसी और तरीके से इसको बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मालूमात है, आप इसको लिखिएगा अपनी बुक में ज़रूर, EVS की बुक में। हमारे सितारे सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारों में से 3 ऐसे हैं जिनको हम बग़ैर स्पेशल तकनीकी आलात के सिर्फ इंसानी आँख से भी देख सकते हैं। मतलब हमें इसके लिए खुदबीनी आइनों की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ख़ुद की आँखों से भी देख सकते हैं। ये 3 सैयारे हैं, मरीख, मुश्तरी और ज़हल हैं। बाज़ औक़ात हमारी ज़मीन से सूरज की जानिब मौजूद सैयारा ज़ोहरा भी देखा जा सकता है। तो आपको ये 4 सैयारों के नाम याद रखने हैं, मरीख, मुश्तरी, ज़हल और ज़ोहरा, जिसे हम देख सकते हैं। चलिए हम इसके साथ में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है 3.2 ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। इन तमाम सैयारों में से ज़मीन पर जानदार मखलूक मौजूद है। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद इसकी ऊपरी सतह ठंडी होकर इस पर आबी ज़ख़ीरा पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ़ किस्म के एक खुलवी जानदार पैदा हुए। एक खुलवी मतलब एक जानदार पैदा हुए। प्रोटोज़ोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस एक खुलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खुलवी जानदार पैदा हुए। एक खुलवी का मतलब एक होता है, प्रोटोज़ोआ नाम, जो सबसे पहले एक खुलवी जानदार पैदा हुआ उसका नाम क्या था? प्रोटोज़ोआ। और उसके बाद में जो ज़्यादा पैदा होने लगे तो मतलब कसीर खुलवी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैदा हुए। एक खुलवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं, वो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देती। नंगी आँखों मतलब हमारी खुद की आँखों से नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। अब जैसे देखिए, इसे हम बेटा अमीबा भी कहते हैं, खुर्दबीन से नज़र आने वाला एक खुलवी जानदार, ठीक है। आप देखिए ब्रेड वगैरह पे फंगस वगैरह लग जाता है, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं, आपको छाई कभी दिखेगा। तो अगर आप ये खुर्दबीन का इस्तेमाल करोगे, हमारे स्कूल के साइंस लैब में ये खुर्दबीन रखी हुई है जिसको हम दूरबीन भी बोलते हैं, तो हम उसके ज़रिए से ये नज़ारे कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। तो ध्यान से फरमाइए, इसको आपकी EVS की बुक में ये बनाना है मेरे बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जी। 3.3 ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। ज़मीन पर, यहाँ देखिए बच्चों, ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया में जानवर और नबातात, जानवर जिसे हम हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, वो नबातात पेड़ पौधों को बोला जाता है बच्चों। इनमें से हम यहाँ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। जानवरों की बाज़ खुसूसियात यहाँ दर्ज है। जानवरों में अमल तनफ़ुस होता है। अमल तनफ़ुस मतलब सांस लेना और छोड़ना। नंबर 2, जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक़्ल हमल करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ग़िज़ा हासिल करने के लिए। परिंदे देखते हो ना आप लोग, उड़ते हैं यहाँ वहाँ, क्यों? क्योंकि उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जानवर तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए। जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ जानवर अंडा देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जानवरों की नस्ल में से बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। बकरियाँ,
देखो बच्चों को जन्म देती है शेरनी, बच्चों में बंदर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब बच्चों को जन्म देने वाले। लेकिन अब परिंदों को देखो, ये सारे के सारे अंडा देते हैं। सांप को देखो, ये भी अंडा देता है। मगरमच्छ को देखो, ये भी अंडा देते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखनी है। और ये जानवरों की तस्वीरें आप बनाएं और उसके आगे उस जानवरों के और उन परिंदों के नाम लिखिए जमीन पर उनके। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वही दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक में। अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है तो हम इसके साथ में बढ़ते हैं वैल्यू की तरफ, इखलाक़ी इक़दार। तो इस सबक से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इस सबक से सबसे पहले तो हमें ये बात सीखने को मिलती है बेटा कि हमें हमारी ज़मीन की हिफाजत और हमारे जानवरों की हिफाजत करना है। अगर ज़मीन होगी तो हम होंगे। मैंने एक सवाल पूछा था यही तस्वीर दिखाकर कि बेटा उसे हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे हाथों में है। तो जाहिर बात है कि हमारी ज़मीन की हिफाजत हमारे हाथों में। हमें प्लास्टिक वेस्ट को बचाना है, एक जगह इकट्ठा करना है, हमें समंदर में या नदी नालों में नहीं फेंकना है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि वो हमारे जानवर खा जाते हैं, जानवर फिर मर जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे शेर बबर की और शेर की जो धीरे धीरे जो नस्लें वो ख़त्म होती जा रही है। अगर ये नस्लें ख़त्म हो गई तो हम कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते ना। तो इसीलिए जब हमारी ज़मीन होगी तो हमारे जंगलात होंगे, जब जंगलात होंगे तो हम होंगे। तो इसीलिए हमको इसकी हिफाजत करना लाजमन ज़रूरी है। ज़मीन होगी तो हम और हमारे जानवरात होंगे। पानी बचाओ, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया सेव वर्ल्ड एंड वाटर, हमको पानी बचाना। अगर पानी ख़त्म हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो हम क्या खारा पानी पी के जी सकते? नहीं। इसीलिए हमको हमारे पानी बचाना है। जब पानी बचेगा तो फिर हम बचेंगे। हम बचेंगे तो हमारे जंगलात होंगे, हमारे चरिंद परिंद होंगे, हमारे जानवरात होंगे, जिसे हम देखते हैं ज़ू वगैरह में जाके, बहुत खुशी होती है ना हमको देखकर। तो इसीलिए आज से हम अहद कर लें कि हमें हमको चीज़ों को बचाना है, पानी भी वेस्ट नहीं करना है। तो आओ हम सब मिलकर अहद करें कि पानी, जंगलात, ज़मीन और जानवरों की हिफाजत करेंगे। ख़त्म शुद। तो ये बातें मेरी याद रखिए, इन तस्वीरों को अपनी EVS की बुक में बनाइए। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्मी अदबी मालूमात खान शाहिदा के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। अल्लाह हाफिज़।